Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher. And today we are going to continue the same lesson, nationalism in Europe. खूब यूरोप घूमे हम लोग, है ना? यूरोप का कोई कंट्री नहीं छोड़ा हमने. Ruzel, unmute yourself. Good morning, Ruzel. Good morning, ma'am. हाँ जी बेटा, recapitulate. Ma'am, yesterday we did about hunger and hardship, we did about the Great Economic Depression in Europe. We studied about the reasons which led to this economic depression, increase in population and unemployment among people. Like many people migrated from rural areas to cities and created overcrowded slums. Then there was industrialization, which led to the stiff competition, and there was aristocracy, and the poor people had to suffer from the feudal system and taxes, and the rise of food prices Okay, means we led to read up economic to, depression. okay, we have read up to page number 16, right? And today we are going to start from page number 16, second paragraph earlier. Am I right? Okay. Purusharth, beta, is it clear to you whatever we have done yesterday? Purusharth, okay beta, chalo. Now today we are going to, where we are going? यूरोप ही जा रहे हैं हम लोग, यूरोप ही घूम रहे हैं. पर यूरोप के कौन से कंट्री में जाना है आज? You know, everybody's dream is to roam about Europe for 1 or 2 months. 2-3 महीने यूरोप घूम के आए, है ना? सबका मन करता है. अनीश से पूछे, अनीश कहाँ जाना तूने? अनीश से पूछते हैं. अनीश, where you want to go? मैम सिलेशिया. सिलेशिया. चलो आज फिर सिलेशिया चलते हैं. पर अच्छा नहीं हुआ था सिलेशिया में. हम पढ़ लेते हैं. Someday when you will get chance to roam about in Europe, Silesia, then you will remember, because my grade 10F student has read about Silesia. Because now the condition, the map you are watching of Europe, it is not now. At present, it is not now like this, which you have seen at the time of 18th century. We are going to read about 18th century Europe. आज यूरोप काफी बदल चुका है. आप जो पढ़ रहे हो, आप यूरोप का पेनफुल एरिया पढ़ रहे हो, यूरोप का वो बैड साइड पढ़ रहे हो. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेशनलिज्म इन यूरोप. आप लोग यूरोप में नेशनलिज्म ला रहे हो. आज तो यूरोप सुधरा हुआ है, बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज है वहां पर चक्कर ये है कि जब आप पढ़ रहे हो यूरोप, तब सारा यूरोप आपस में लड़ झगड़ रहा है. जब आप इंडिया पढ़ोगे ना, आप इंडिया के बारे में भी तभी पढ़ोगे जब पूरा का पूरा इंडिया खराब हो रखा था. So that's why the need of nationalism was there in India, na? And after all, after that we got independence in 1947. In the same sense, you are also going to read about the bad phase of Europe and how nationalism began in Europe. And finally, Europe was unified. ये आप पढ़ रहे हो. आप बैड पिक्चर पढ़ रहे हो उसकी, खराब पिक्चर पढ़ रहे हो उसकी. अच्छी पिक्चर तो अब लोग देखते हैं जब यूरोप घूमने जाते हैं. तो आप लोग भी जब कभी यूरोप घूमने जाओगे ना, देन यू विल रिकॉल, अरे रीटा मैम ने तो ये पढ़ाया था, ऐसा तो नहीं है यूरोप. ओहो, जर्मनी का मैडम ने बताया इतना बुरा हाल था. इटली तो पूरा का पूरा टूटा हुआ था. सिलेशिया में तो मारने पर तुल गए थे सारे, राजा खुद भाग गया था. हाँ, और फ्रांस में तो आप 9th से पढ़ते आए हो, ऐसा ऐसा वाला है. बट आज तो यूरोप इतना अच्छा है. तो मैम ने हमें बताया बैड फेस ऑफ यूरोप. सो यू आर लर्निंग द पैथेटिक कंडीशन ऑफ यूरोप. उसके बाद फिर नेशनलिज्म आया और आज यूरोप बहुत 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 अच्छा है. आज मोस्ट ऑफ द पीपल्स ड्रीम इज टू रोम अबाउट यूरोप, है ना? DDLJ मूवी देखी, उसमें भी वो काजोल जो होती है वो यूरोप घूमने जाती है. उसका सपना होता है कि वो थोड़े दिन यूरोप घूम के आए. ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं यूरोप में. चलो अनीश की बात मानते हैं, आज सिलेशिया चलते हैं.
Some of my good students, they are with off cameras. I don't like it. If you want to enjoy the lesson, if you want to go to Silesia, then your camera must be on. नहीं तो फिर मैं भी कैमरा ऑफ कर लूंगी और देखना जब मैं बोलती हूँ कितना खराब लगता है, जब टीचर सामने ना हो तो कितना खराब लगता है. अरे इट हैपेंस इन क्लासरूम ऑल्सो ना, व्हेन वी यूज्ड टू टीच, है ना, एक दो लाइनें लिखी होती हैं, देन यू पीपल स्टार्ट सेइंग मैम साइड होना, मैम बोर्ड से दिखना, मैम आप आगे आते हो, मैम थोड़ा साइड हो जाना, मैम इसको बोलो साइड हो जाए, बोर्ड नहीं दिख रहा है ना. और समटाइम तो ऐसा होता है, अनुज तुझे एक बात बताऊं, आई हैव रिटन ओनली ग्रेड, सेक्शन, सब्जेक्ट, चैप्टर यूरोप, टॉपिक द कंडीशन ऑफ सिलेशिया. तो मैंने बोला क्लास में ऑल ओके, यस मैम. सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग मैम थोड़ा साइड होना, मैम दिख नहीं रहा बोर्ड पे. मैंने कहा आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग, जस्ट चैप्टर नेम एंड टॉपिक नेम. तो सामने ना दिखे टीचर, ना बोर्ड दिखे, तो वी गॉट इरिटेटेड. बट सृजन नहीं मान रहा, अभी भी उसका कैमरा ऑफ है, हार्दिक का कैमरा ऑफ है, तो मैं रिमूव कर दूंगी. अगर आपकी हैबिट ये है ना सिटिंग विद ऑफ कैमराज, तो मेरी हैबिट ये है, आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट विद ऑफ कैमराज. चलो सिलेशिया चलते हैं. शान पढ़ेगा तू बेटा? चलो ओपन योर बुक बेटा and page number 16. Today we will read for 10 minutes. 10 minutes में explain करूंगी and within 10 minutes you will write the question. सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, पर ध्यान से देख लेना सिलेशिया में क्या था, what was the condition, why the people were in pain and what happened finally. Okay, सिर्फ 10 मिनट मैंने पढ़ाना है, अच्छे से आप पढ़ लेना. ओके चलो बेटा शान स्टार्ट करो. गुड मॉर्निंग शान. गुड मॉर्निंग मैम. यस. Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payments. चलो जी, बहुत कुछ शान ने एक ही लाइन में पढ़ दिया. हाफ लाइन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, क्योंकि इस लाइन में 3 लाइनें हैं. नाउ सी द कंडीशन ऑफ सिलेशिया. इन सिलेशिया मोस्ट ऑफ द पीपल वर वीवर्स. वीवर समझते जो वीव करते हैं, जो कपड़ा बुनते हैं, जो धागा बुनते हैं. They were totally exploited with the contractors, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देते थे. कॉन्ट्रैक्टर्स का काम क्या होता था? They were taking raw material from the weavers and in return finished good they sold to them with high prices. But weavers were very much poor and they were not having other opportunity of job. उनके पास कोई दूसरी जॉब नहीं थी. So willingly or unwillingly they had to agree upon the contractors. उनको ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता था. Whatever the payment or contractor was giving, they have to convince. उनको वो माननी पड़ती थी. They have to agree upon. तो gradually what happened, contractors realized कि इनके पास तो कोई चारा नहीं है, weavers के पास, ये मेरे पास ही आएंगे, तो मैं जितना इनको पैसा दे दूंगा ये रख लेंगे, मना नहीं करेंगे, काम से भी मना नहीं करेंगे. तो अभी शान ने पढ़ा लास्ट लाइन, ड्रास्टिकली डिक्रीज द वेजेस. तो व्हाट दे डिड, ड्रास्टिकली डिक्रीज द वेजेस. उनकी दिहाड़ी करते 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 बहुत कम कर दी वीवर्स की. उनके पास ऑप्शन नहीं था. तो दिस वाज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वीवर्स बाय कॉन्ट्रैक्टर्स. फर्स्ट लाइन क्लियर? देखो बेटा स्टोरी की तरह पढ़ोगे, कूल होके पढ़ोगे तो हमेशा समझ आएगा सिलेशिया में क्या हुआ था. रट्टा लगाओगे, कॉम्प्लिकेटेड वे से करोगे, ओहो यूरोप सिलेशिया ये कैसा टॉपिक है, ऊपर पिक्चर भी है, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर द होल ईयर दिस क्वेश्चन विल टॉर्चर यू. फिर नहीं आएगा. इजी तरीके से पढ़ो. हम सिलेशिया जा रहे हैं घूमने के लिए, बड़ा अच्छा कंट्री है, बट कंडीशन अच्छी नहीं है लोगों की. क्यों अच्छी नहीं है? पढ़े लिखे नहीं है, कोई और उनको काम आता नहीं है, एक ही काम आता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उनका फायदा उठा रहे हैं. और आपको पता है कोई किसी को एक्सप्लॉइट कब तक कर सकता है? एक लिमिट तक कर सकता है. एक लिमिट के बाद पीपल भड़क जाते हैं. आप तो हिस्ट्री 9th 8th में पढ़ के आए हो. यू हैव सीन, ग्रेड 8 में भी हमने पढ़ा था ना, इंडिया की जब थी पूरा रिवोल्ट हो गया था 1857. कब से शुरू हुए थे हम, पर फाइनली रिवोल्ट हो गया था. देन गांधीयन इरा स्टार्टेड. गांधी जी भी नहीं माने, भगत सिंह, राजगुरु, बहुत सारे आ गए फिर, है ना. मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशन एंड फ्रीडम फाइटर्स वर देयर. राइट. सो
जब पीपल भड़कते हैं, जब पब्लिक भड़कती है ना, तो देन नो ऑप्शन. The same condition was prevailing in Silesia. Now I hope first line clear to you. हाँ जी शान, start बेटा, further. The journalist Wilhelm Wolf described the events in a Silesian village as follows. चलो, एक जर्नलिस्ट था विलियम वॉल्फ. उस टाइम भी होते थे जर्नलिस्ट, आज भी होते हैं ना. तो जर्नलिस्ट को हम बड़ा ध्यान से सुनते हैं. Some of the journalists are having that kind of talent के मजा आ जाता है मुझे. जैसे अभी ना वो आते हैं सुधीर चौधरी चैनल पे, वो बहुत अच्छा न्यूज पढ़ते हैं. आशुतोष आज तक चैनल में बड़ी अच्छी न्यूज पढ़ते हैं. Some of the journalists. हाँ पुरुषार्थ बेटा, you want to say something? अर्नब गोस्वामी also. अर्नब गोस्वामी, हाय रब्बा, वो तो ऐसे पढ़ते हैं ना न्यूज के बंदा उठ ही नहीं सकता. वो कैसी भी न्यूज होती है ना, उनको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं ना कि सेम न्यूज अगर किसी और चैनल पे आए तो बोरिंग लगती है. एंड वी स्टार्टेड चेंजिंग द चैनल्स. तो ऐसे ही हमारे एक जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ. उन्होंने सिलेशिया की पूरी विजिट करी और 4 लाइनों में अपनी रिपोर्ट भेजी. अब मैं यहाँ पर अपनी क्लास 10F में से किसी को जर्नलिस्ट बनाने वाली हूँ, ठीक है. विलियम वॉल्फ बनेगा और वो बताएगा 4 लाइनों में सिलेशिया में क्या हो रहा था. आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. अब मैं जर्नलिस्ट बना रही हूँ कशिश को. खूब हेडफोन पहन लेना, उसने चश्मा पहना है, जर्नलिस्ट लग रही है. चल कशिश अनम्यूट कर. नाउ यू आर विलियम वॉल्फ, सिलेशिया हो आप, रिपोर्ट देनी है आपने न्यूज चैनल पे. टेल मी व्हाट यू हैव सीन इन सिलेशिया. कुछ अच्छे से एक्टिव होके पढ़ना. हाँ जी बेटा. In this village with 18,000 inhabitants, cotton weavers is the most widespread occupation. The misery of the worker is extreme. The desperate need for job has been taken advantage of by the contractors to reduce the price of goods they order. चलो जी, जर्नलिस्ट कहती है, विलियम वॉल्फ कहता है कि अबाउट 18,000 इनहैबिटेंट्स का मीनिंग लिखो लिविंग पीपल, जो वहां पर रहने वाले थे, बाहर से नहीं आए थे. इनहैबिटेंट्स लिविंग पीपल, जिनका अपना घर, खुद का घर. एनआरआई नहीं थे, कहीं और से नहीं आए थे वो. ऑलमोस्ट विलियम वॉल्फ ने बताया 18,000 पीपल. कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन. लगभग 20,000 लोगों का ऑक्यूपेशन सिर्फ वीविंग था. उनको कोई और काम नहीं आता था वीविंग के अलावा. एंड गेव देम ऑर्डर फॉर फिनिश, सॉरी, द मिजरी ऑफ द वर्कर्स. मिजरी का मीनिंग लिखो पेन, सफरिंग. एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का लिखो टू मच, TOO, या वेरी मच. वंश चौधरी, हार्दिक, लास्ट वार्निंग, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू. लास्ट वार्निंग. पुरुषार्थ एंड अनीश, कैमरा ऑन, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू. हार्दिक अच्छे लग रहे हैं तेरे बाल बेटा, सीधा बैठ, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही तो सुनेगा. यस. हाँ जी. और जर्नलिस्ट ने बताया देयर माइजरी वाज वेरी एक्सट्रीम. उनकी पेन, उनकी सफरिंग इतनी ज्यादा थी ना, दैट नंबर ऑफ द पीपल वर सफरिंग अ लॉट. नाउ लास्ट लाइन जर्नलिस्ट ने बताई, द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज. उनको इतनी ज्यादा नीड थी ना जॉब की, इसका फायदा किसने उठाया? कॉन्ट्रैक्टर्स ने. उसको पता था जाना तो इन्होंने कहीं नहीं है, काम और कोई आता नहीं है, जितने भी पैसे देंगे चुपचाप रख लेंगे ये. और इस तरह एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्टर्स का. कॉन्ट्रैक्टर्स ने वीवर्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया. एंड रिड्यूस द प्राइजेस द गुड्स एज दे ऑर्डर. और जितना जितना ऑर्डर करते थे उतना उतना प्राइजेस उनका कम कर दिया. सो इन दिस वे एक्सप्लॉयटेशन स्टार्टेड. हाँ जी शान, कंटिन्यू बेटा. शान पहले तो कैमरा ठीक करना. हाँ, नाउ स्टार्ट बेटा. हाँ पुरुषार्थ, वांट टू से समथिंग? I want to ask something हाँ जी. that ये जो कंडीशन थी ये पूरे सिलेशिया की थी? हाँ पूरे सिलेशिया की थी. पूरे सिलेशिया मैम पूरे सिलेशिया में एक ही जॉब थी? ऑलमोस्ट एक ही थी. अब पंजाब के बारे में आप पूछो ना, मेरी बात सुनो. अब ऑलमोस्ट इन द सेंस 100% तो नहीं, बट एटलीस्ट 80%. अब पंजाब का मेजर ऑक्यूपेशन आप लोग क्या बोलोगे?
फार्मिंग। फार्मिंग बोलोगे आप, है ना? तो इन द सेम सेंस ये इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आप ये कह लो कि सिर्फ फार्मिंग ही आती है और किसी को कुछ आता ही नहीं है। अब मेरी फैमिली फार्मिंग से नहीं है, मैं फार्मिंग से नहीं हूँ, बट सिलेशिया में मोस्ट ऑफ द 80% जॉब जो थी वो वीविंग थी, ज्यादा ऑक्यूपेशन वीविंग था। ठीक है पुरुषार्थ, 100% सिलेशिया वीविंग नहीं था। हाँ जी, यस, हाँ जी अनीश बेटा अनम्यूट कर रही हूँ, वांट टू से समथिंग? मैम सेइंग मैम दैट मैं बाहर आया हूँ इसलिए कैमरा ऑफ है। मैम आपको मैसेज भी किया था मैंने, लेकिन आप अब मैं फोन नहीं ना पकड़ सकती हूँ ना, मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसे डाइवर्ट हो हाँ जाती। जी मेरी बात सुनो, तू फिर बाहर कहाँ आया? मैम वो अभी बाहर आया मैम, मैंने 10-15 या 10 बजे अपने घर पहुंच जाना है मैम, तब मैं कैमरा ऑन कर। सुन, बेटर टू लीव द क्लास, फिर पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, ये वीडियो अपलोड होनी है सुबह कैम्ब्रिज फेसबुक पेज पे, देन यू विल सी। ओके ओके हार्दिक, गुड मॉर्निंग बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। हार्दिक गुड मॉर्निंग, अनम्यूट योरसेल्फ। हार्दिक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हार्दिक को भी समझ नहीं आ रही है। हार्दिक अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हार्दिक बेटा आई एम रिमूविंग यू, पहले आप डिसाइड कर लो कैमरा ऑन करना है कि ऑफ करना है। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रिमूविंग यू। मेरी क्लास थोड़ी मैं खराब करने दूंगी आपको। यू आर मार्क्ड एब्सेंट। I have to mark sometimes 2 types of attendance for some of the students. क्लास थोड़ा ना मैं खराब करने दूंगी अपनी इनको। अनीश की तो लीव लगा दूंगी मैं, बट हार्दिक एब्सेंट। मेरा पूरा लेसन खराब करोगे तो आई विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इन माई क्लास। Yes, now this was the condition of Cilicia. Krish, start learning beta, start reading. Next, on 4 June, Krish unmute करो। Krish unmute yourself। Very good. चलो क्रिश, आई एम रिमूविंग यू, आई एम पुटिंग यू इन वेटिंग रूम। ठीक है, 10 मिनट बिता के आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ जी सार्थक अग्रवाल, स्टार्ट रीडिंग बेटा। ऑन 4 जून, On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in Paris up to the mansion of their contractor demanding higher wages. चलो जी, जितना हो सकता था बर्दाश्त किया। उर्विश कैमरा से हाथ पीछे करो। जितना हो सकता था वीवर्स ने बर्दाश्त किया, बट फाइनली ऑल द पीपल केम ऑन द रोड। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द मेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। मेंशन मतलब बिग हाउस, देयर बिग बंगलो। उन्होंने उनके बंगलों के सामने, बड़े बड़े घरों के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब पब्लिक तंग आ जाती है ना, तो फिर वो ऐसे ही करती है। जहां तक हो सकता है इंसान बर्दाश्त करता है एक लिमिट तक, उसके बाद फिर वो राइवल हो जाता है। द सेम कंडीशन वाज प्रिवेलिंग इन सिलेशिया। जब तक हुआ कॉन्ट्रैक्टर का एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने बर्दाश्त करा। जब नहीं कर सकते, द पीपल केम ऑन द रोड। अब जब आपको पता पब्लिक की कोई शक्ल नहीं होती है, यू कैन अरेस्ट, गवर्नमेंट कैन अरेस्ट 1 or 2% ओनली, और 4-5%। गवर्नमेंट कांट अरेस्ट 100 और मोर देन 100 पीपल। तो पूरी की पूरी पब्लिक सड़क पर आ गई। व्हाट विल बी द किंग डू, व्हाट विल द गवर्नमेंट डू? सार्थक पढ़ना, फिर क्या हुआ? They were treated with scorn and threats alternately. बदले में क्या हुआ? उनको थ्रेट किया गया। थ्रेट मतलब डेंजर, उनको डराया गया।
मतलब contractors took brutal steps against the weavers. Yes, Sarthak. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, proclaim. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of clothes, which they tore to shreds. चलो जी, सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया, दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर सब कुछ तोड़ दिया, पूरे शीशे तोड़ दिए। और उनमें से कुछ ग्रुप्स तो कहाँ आ गए, अभी सार्थक ने पढ़ा, स्टोर हाउस में आ गए। एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लोथ विच दे टॉर ऑफ श्रेड्स, जितने वो थ्रेड पड़े थे, श्रेड थे। एंड वो सब वीवर्स के घर में तो यही सब होगा ना, धागा और कपड़ा। वीवर्स ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे वो जो जितना भी मटेरियल पड़ा था सब कुछ बर्बाद कर दिया। वीवर्स अब बहुत ज्यादा भड़क गए, पब्लिक नहीं मानने वाली है। हाँ जी सार्थिक, व्हाट हैपेंड देन? The contractor fled with his family to a neighboring village, which, however, refused to shelter such a person. चलो He जी, returned कॉन्ट्रैक्टर डर गए, 24 कॉन्ट्रैक्टर भाग गए, साथ वाले गांव में चले गए। अब साथ वाले गांव वालों को भी पता है कॉन्ट्रैक्टर बड़े खराब होते थे, तो उन्होंने भी उनको शेल्टर नहीं दिया। देन फाइनली सार्थक, He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. 24 घंटे बाद वो वापस आए, आर्मी को रिक्वेशन किया, और अगेन ही टुक ब्रूटल स्टेप्स अगेंस्ट द वीवर्स एंड 11 वीवर्स वर शॉटेड, और 11 वीवर्स को मार दिया गया। मतलब कंडीशन अभी भी सिलेशिया में बहुत खराब थी। सो दिस वाज द कंडीशन ऑफ द वीवर्स ऑफ सिलेशिया। शो मी थम्स अप इफ क्वेश्चन इज क्लियर। 50% क्लियर है, बाकी मैं करवा दूंगी। और चलो, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी, डायरेक्टली यू विल नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे ना 5 मार्क्स आंसर, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास सिर्फ ये बचेगा, अर्लियर से लेकर 1 पैराग्राफ बचेगा। कोटेशन हम विलियम वॉल्फ का डायलॉग नहीं लिखेंगे, एंड में दिस शॉर्ट पैराग्राफ, एंड इवन यू विल अनेबल टू वाइंड अप द आंसर इन 5 मार्क्स अलोंग विद इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. So do one thing, this question I will dictate you. Right, open your copies. And never share your notebooks with any student who have not joined the class. Be little mean and selfish. Don't share your copies with anyone. Hanji, write down today's date, 5 May. Yes, Shabnam, want to say something, beta? You raised hand. Ma'am, yesterday one question you have told why the year 1848 was important. That question directly we will do from book. We will not write in copy. ठीक है, जो बुक पे पैराग्राफ can you dictate the answer of that question? 1848. बेटा 1848, that short paragraph only. कुछ भी खास नहीं है। हाँ, बस उस साल कुछ ऐसा ही हुआ था, खराब साल था, फूड शॉर्टेज थी, ऊपर वाले ही 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। फूड शॉर्टेज थी, राइस प्राइस था, बैड हार्वेस्ट थी, पैपोरिज्म था, पॉपुलेशन इंक्रीज, सो दीज काइंड ऑफ रीजन यू कुड मेंशन. Yes, Rahul, you raised hand, beta. Want to say something? Mama, I want to say that we haven't written the conclusion of the question about vernacular language. No problem, छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, कुछ भी डाल सकते हो आप. You know much lines about Russian and Polish and clergy and the government, so you can add 2-3 lines. चलो, हाँ जी, written, date written बेटा. चलो, हाँ जी, क्वेश्चन. Explain the painful condition of the weavers of Silesia. आराम से लिखना, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, बस यही क्वेश्चन लिखना है, क्लास एंड अप कर दूंगी मैं. बट मेक श्योर while writing if you face any problem you can raise hand. मैम क्या बोला आपने, मैम इस लाइन का क्या मतलब है, मैम कहाँ से पैराग्राफ, मैम क्या हेडिंग, तो अभी पूछ लेना, रॉन्ग नहीं लिखना. What was the painful condition of the weavers of Silesia? वंश लिख रहे हो? Okay. What was the painful condition of the weavers of Silesia? One more question in the molding form. Okay, write or. OR.
Describe the revolt. Describe the revolt led by the Silesian weavers. बेटा S capital, name of a country ना, तो S capital. By the Silesian weavers against the contractors in 1845. Shabnam, are you writing? Okay. Against the contractor in 1845. Yes, answer. मैं धीरे धीरे बोलूंगी, कोई पैनिक नहीं होना, आपने आराम से लिखना. जहां से कहोगे स्टॉप तो मैं स्टॉप कर जाऊंगी. ठीक है? यस, आंसर. Beta, open your book, page number 16. Beta, its first line, na, earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against the contractors who supplied them raw material and gave them orders for the finished textile, drastically reduced their payment. Mila beta? This will be introduction. This will be introduction. अच्छा, आप ऐसा करो, इंट्रोडक्शन के लिए ना आप अंदाजे से 4 लाइंस छोड़ दो. मुझे लगता 4 लाइंस में आ जाएगी. ठीक है? अभी नहीं लिखना, बाद में लिख देना. स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, मैं डिक्टेट कर रही हूँ. लीव 4 लाइंस, 5 लाइंस अंदाजे से आपके सामने है. यू नो बेटर के हाउ मच लाइन. 1-2 लाइन ऐसे छोड़ देना मार्जिन लेके. हाँ पुरुषार्थ. यस पुरुषार्थ. Ma'am, the introduction can't we start from in 1845? आगे बोलो. Weavers in Silesia had led the revolt against contractors. मैंने भी तो यही बोला. The same thing I told you. आप कहते हो अर्लियर वर्ड नहीं लिखना. मैंने भी अर्लियर नहीं लिखना. क्यों? रीजन ठीक नहीं लग रहा. बट क्यों? अच्छा चलो ठीक है. आई थिंक यू नो बेटर इंग्लिश. नहीं लिखना तो तभी भी चलेगा. इन 1845 से शुरू कर दो. लिखना है तभी भी ठीक है, नहीं लिखना तभी भी ठीक है. आप लिखोगे पेमेंट तक. ये रही आपकी इंट्रोडक्शन. ओके. हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट. नाउ आई एम गोइंग टू डिक्टेट. अब आपको बुक से नहीं मिलेगा. जो बुक से होगा पॉइंट दैट आई विल टेल यू. हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग अपराइजिंग ऑफ 1845. अनुज कैमरा ऑन कर बेटा. अपराइजिंग ऑफ 1845. अंडरलाइन. अब जो बोल रही है ध्यान से सुन के लिखते जाना. ओके. इंट्रोडक्शन के लिए यू हैव लेफ्ट 4 लाइंस. यू विल राइट आफ्टरवर्ड्स. हाँ जी, द सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग. द सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग. अपराइजिंग होता है रिवोल्ट. ओके, एक ही बात है. द सिलेशियन वीवर्स अपराइजिंग ऑफ 1845 was a spontaneous revolt
was a spontaneous, SPONTANEOUS, spontaneous revolt spontaneous. हाँ उर्वीश बेटा, want to say something? Can you repeat the spelling? Spontaneous. SPONTANEOUS, spontaneous revolt of peasant weavers, which was subsequently, हाँ सार्थक, मैम वीवर्स पीजेंट्स भी थे, हाँ वो पीजेंट भी थे, पीजेंट भी थे वो, दोनों काम करते थे। हाँ पीजेंट वीवर ही कहते हैं उनको। अच्छा, whenever you ask any kind of doubt ना, I feel good, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब आंखें बंद करके नहीं लिख रहे हो, हाँ जाग के लिख रहे हो। पर अभी भी मेरा चेहरा उनको तलाश कर रहा है who will ask the meaning of spontaneous। आंखें बंद करके लिख लिया, स्पेलिंग लिख लिए, किसी ने नहीं मीनिंग पूछा। मैं भी नहीं बताऊंगी जब तक आप लोग पूछोगे नहीं, लिखते जाओ। स्पॉन्टेनियस रिवोल्ट रूजल हंस रही है। Spontaneous revolt by peasant weavers, which was subsequently joined by the broad peasant masses, MASSES. Ma'am, what is the meaning of spontaneous? अच्छा ठीक है, बता देती हूँ मैं। Peasant masses, MASSES. हाँ जी, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग लिखो, सडन अपहीवल, सडन अपहीवल, अचानक से कुछ हो जाना, बिना वार्निंग के कुछ हो जाना, विच इज नॉट प्लेजेंट, जिससे खुश ना हो कोई। कशिश ने क्लास को संभाल लिया, हाँ फटाफट पूछ के। चलो अच्छा, मासिस का क्या मतलब होता है? आप लोगों ने मासिस लिखा अभी, क्यों उर्वेश? सृजन मासिस क्या होता है? MASSES. Oh, very good. 6 hands. We can say a group of people or large number of people. Yes. Masses means large number of people. Thank you बेटा, या पब्लिक हम कह सकते हैं। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट। थैंक यू बेटा। सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ रिवोल्ट, एरिया ऑफ रिवोल्ट, अंडरलाइन। You know this question is very valuable. You can say this question is very expensive. काफी कीमती क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है जो सबको सब कुछ पता होते हुए भी ना सिलेशिया का फिर भी लिखना नहीं आता 5 मार्क्स में। एंड मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड वट एवर यू नो। अब आपको सारी कहानी मैंने सिलेशिया की बता दी, आपको सब पता है वीवर्स क्या थे, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या थे, कहाँ झगड़ा हुआ, क्यों हुआ, फाइनली फिर 11 बंदे मर गए, आपको सब पता है। बट मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड वट एवर यू नो, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड वट एवर यू हैव रिटन विद प्रेजेंटेशन, उसके मार्क्स मिलेंगे। हाँ आहान? मैम एरिया ऑफ रिवोल्ट और एरा ऑफ रिवोल्ट? बेटा एरिया, एरिया, एरिया मतलब सिलेशिया में कौन सी जगह पर हुआ था। ओके हाँ जी, अंडरलाइन। इट टुक प्लेस इन जून, it took place in June
इन द माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेशिया, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो माउंटेनियस एरिया, इन द माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेशिया which at the time belonged to Prussia, उस टाइम प्रशिया का हिस्सा था, which at the time belonged to Prussia. Now third point. Struggle against contractors. हाँ सार्थक. Ma'am, if the district was of Persia, then how it could be of Silesia? ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे आप कह लो इंडिया है और इंडिया में पंजाब है. मेरी बात समझ आ गई? ऐसे ही यूरोप था, यूरोप में सिलेशिया था. ठीक है मैम, the mountainous district was of Persia, then how it could be of Silesia? एक मेरी बात सुन, सिलेशिया पूरा का पूरा नहीं, सिलेशिया में एक हिस्सा था, वो था माउंटेनियस एरिया. अब जैसे आज की न्यूज में है कि मोहाली में बहुत बुरा हाल हो गया चंडीगढ़ में. अब क्वेश्चन है मोहाली कहाँ है, चंडीगढ़ कहाँ है, पंजाब कहाँ है? पंजाब में चंडीगढ़ है, इंडिया में पंजाब है, पंजाब में चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में मोहाली एक जगह है. तो इन द सेम सेंस माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलेशिया, पूरा का पूरा सिलेशिया नहीं है, 100% नहीं है. अभी आपने पहले क्वेश्चन पूछा था, तो सिलेशिया का एक गांव था, एक डिस्ट्रिक्ट था, माउंटेनियस एरिया था, तभी मैंने ये आपको लिखवा दिया. ठीक है, हाँ जी. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रगल अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स. अंडरलाइन. द अपराइजिंग बिगेन इन मार्च. मार्च में काम शुरू हो गया था. द अपराइजिंग विच बिगेन इन मार्च, जून तक काम ज्यादा खराब हो गया. विच बिगिन इन अप्रैल डेवलप्ड इनटू अ स्ट्रगल. इतना बड़ा स्ट्रगल बन गया जून तक आते आते 2 महीने में. डेवलप्ड इनटू अ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स. हाँ बेटा शबनम. पॉइंट दोबारा करना. द अपराइजिंग बिगिन इन मार्च. हाँ, द अपराइजिंग बिगेन इन मार्च, डेवलप्ड इनटू अ स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स. Against the struggle against the contractors. It involved almost 20,000 people. हाँ, बुक में 18 लिखा था. It involved almost 20,000 people. बुक में 18,000 पूरा का पूरा विलियम वॉल्फ ने पूरा का पूरा बताया था. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द इमीडिएट कॉज. The immediate cause. Beta, 2 points left. Can we complete tomorrow? ना टाइम हो गया ना. We will complete tomorrow. These 2 points left. We will complete tomorrow. चलो, thank you very much बेटा. If you feel any doubt, you can WhatsApp me or your doubts will be taken tomorrow. उर्विश कल डाउट ले लूं बेटा. चलो, हाँ बोलो 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 फिर. Tell what do you want to say. हाँ बेटा. मैम एक्चुअली आप हेडिंग रिपीट कर सकते हो? हाँ, द इमीडिएट कॉज. हाँ शबनम. मैम, इट इन्वॉल्व ऑलमोस्ट 20,000 people. 20,000 people. बुक पे लिखा था ये. चलो ठीक है. ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा. वी विल कंटिन्यू टुमारो.